شمالی علاقوں میں ہبس اور گرمی کی لہر، برف پگھلنے کا عمل تیز ہو گیا۔ ارسا کے مطابق دریاؤں میں پانی کا بہاؤ غیر معمولی ہو گیا ہے۔ دریائے سندھ میں تربیلا کے مقام پر پانی کی آمد 3,23,000 کیوسک جبکہ ڈیم سے 2,44,000 کیوسک پانی خارج ہو رہا ہے۔ تربیلا ڈیم میں پانی کا ذخیرہ 45 لاکھ ایکڑ فیٹ ہے۔ مزید بات کرتے ہیں اویس کیانی سے۔ اویس کہیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ دریائے سندھ میں تربیلا کے مقام پر پانی کی آمد جو ہے وہ 3,23,000 کیوسک ہے اور ڈیم سے 2,44,000 کیوسک جو ہے پانی کا اخراج ہو رہا ہے، جبکہ پانی کا جو تربیلا ڈیم میں ذخیرہ ہے وہ 45 لاکھ ایکڑ فٹ ہو چکا ہے۔ اسی طرح جو بات کی جائے چشمہ کے مقام پر پانی کا جو بہاؤ ہے اس میں بھی جو ہے اضافہ دیکھنے میں آیا، 3,27,000 کیوسک ہو چکا ہے۔ دریائے سندھ میں جو کالا باغ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 2,41,000 کیوسک ہے۔ اسی طرح جو بیراجز کی اگر بات کی جائے تو کوٹری بیراج پر پانی کا جو بہاؤ ہے وہ 1,18,000 کیوسک ہے۔ 91,000 کیوسک جو ہے پانی سمندر بر اس وقت ہو رہا ہے ارسا کے مطابق، اور 1 اپریل سے اب تک 17 لاکھ ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ سمندر بر جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ اس طرح جو بیراجز کے مقام پر بھی جو ہے اس وقت جو ہے درمیانے درجے کا جو ہے سیلاب کی صورتحال بتائی جا رہی ہے مختلف علاقوں میں، تو پانی کا جو بہاؤ ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور اسٹوریج ہے دریاؤں ڈیموں میں اس میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے۔ یقینی طور پر جو ہائیڈل کی جو جنریشن ہے، جو پانی بجلی کی جو پیداوار ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے اس پانی کی صورتحال۔ اویس کیانی آپ کا بہت شکریہ۔ تخت بھائی میں مانسون کی شدید بارشوں نے نظام زندگی معطل کر کے رکھ دیا۔ سڑکوں پر پانی کا راج ہے۔ پانی دکانوں اور گھروں میں داخل ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیشگوئی کر دی ہے۔ مزید بات کرتے ہیں ملک رحمان سے۔ رحمان آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، مانسون کی شدید بارشوں نے تغوی میں نظام زندگی معطل کر کے رکھ دیا ہے۔ ضلع مردان کے تحصیل تغوی میں جمعہ سے شروع ہونے والی بارش تاحال وقفے سے جاری ہے۔ شدید بارش سے مین مارکن روڈ، آثار قدیمہ روڈ، معراج کالونی، گل بہار اور ریلوے پاٹک کالونی پانی میں ڈوب گئے ہیں، جبکہ پانی دکانوں اور گھروں میں داخل ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا۔ بارش کے بعد کئی علاقوں میں شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے۔ ملک رحمان آپ کا بہت شکریہ۔ کمالیہ میں کوٹ پٹھان کے مقام پر دریائے راوی میں نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ دریائی کٹاؤ سے سینکڑوں ایکڑ زمین دریا برد ہو گئی ہے۔ علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقامات پر منتقل ہونے لگے ہیں۔ مزید بات کرتے ہیں رضوان خان سے۔ رضوان اپڈیٹ کیجیے گا۔ کمالیہ کا یہ نواحی علاقہ ہے بھسی کاٹھیاں، جہاں پر کوٹ پٹھانہ کے مقام پر جو ہے نچلے درجے کا سیلاب ہونے کی وجہ سے یہاں پر مکین ہیں وہ خاصے پریشان دکھائی دیتے ہیں، اور مختلف جو ان کے جانور وغیرہ ہیں ان کو بھی محفوظ مقامات پر پہنچائے جا رہے ہیں، کیونکہ دریا راوی میں جو ہے نچلے درجے کا سیلاب ہے، لیکن انتظامیہ کی جانب سے جو کسی بھی قسم کے ابھی تک اقدامات نہیں کیے گئے۔ دوسری جانب اگر بات کی جائے یہاں پر تو جو نچلے درجے کا سیلاب ہونے کی وجہ سے جو ہے تقریباً یہاں پر مکین ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ 100 سے زائد ایکڑ ہیں وہ بھی جو ہے کٹاؤ کی نظر ہو چکے ہیں، کیونکہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر جو ہے زمینی کٹاؤ لگ چکا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے پیش نظر ہو چکا ہے۔ یہاں پر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ دریا راوی ہے، جس میں جو ہے نچلے درجے کا سیلاب ہونے کی وجہ سے جو ہے دور دور تک پانی ہی پانی جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے، لیکن ابھی تک جو ہے کسی بھی قسم کے اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ انتظامیہ کی جانب سے مکینوں کا کہنا ہے کہ کوئی بھی افسر بھی یہاں پر نہیں آیا، اور ان کی داد رسی کرنے کی وجہ سے اور بہت سے لوگ یہاں پر جو ہے محفوظ مقامات پر اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے منتقل ہو چکے ہیں۔ مکینوں کی جانب سے اپیل کی گئی ہے کہ جلد از جلد جو ہے اقدامات کیے جائیں تاکہ جو ہے زمینی کٹاؤ ہے خاص کر آپ کا بہت شکریہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ منچھر جھیل پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے منچھر جھیل کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو منچھر جھیل پر محکمہ آبپاشی کی طرف سے بریفنگ۔ منچھر جھیل 100 اسکوائر کلومیٹر پر کیرتھر کے پہاڑی سلسلے کے نیچے پھیلا ہوا ہے۔ منچھر جھیل میں دیگر صوبوں سے سیلابی پانی داخل ہوتا ہے۔ منچھر جھیل 2010 میں اس وقت ٹوٹی جب پانی کا لیول RL 121.1 فٹ پر پہنچا تھا۔ بات کرتے ہیں آزاد نوہڑیوں سے۔ جی آزاد۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ آج چھٹی کے روز بھی جو ہے منچھر جھیل کے مقام پر پہنچے ہیں۔ اس سے قبل مراد علی شاہ اپنے آبائی حلقے 7 پہنچے، وہاں سے جو ہے طیارے کے ذریعے منچھر جھیل پر پہنچے۔ وہاں پر جو منچھر جھیل میں اس وقت جو سیلابی صورتحال ہے اس حوالے سے انہوں نے جائزہ لیا، اور محکمہ آبپاشی
की जानब से वज़ीर आला सिंध को तफसीली तौर पर जो सूरत हाल सैलाबी उस हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर मुराद अली शाह ने मंछर झील के माहिरों के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करने की जो हिदायत कर दी है। इसके साथ साथ उन्होंने मंछर झील के माहीगिरों के मसाइल भी सुने और वज़ीर आला सिंध ने माहीगिरों को यकीन दिलाया कि उनको तना नहीं छोड़ा जाएगा। इस हवाले से महकमा आपाशी को वाज़ेह तौर पर अहकाम जारी किए हैं कि 24 घंटे मंछर झील की निगरानी की जाए ताकि यहाँ के जो मच्छर हैं उनको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इस हवाले से महकमा आपाशी के साथ साथ महकमा बहाली और जो सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को भी अहकाम जारी किए गए हैं कि मंछर झील की मुकम्मल तौर पर निगरानी कर दी जाए ताकि यहाँ के जो मच्छर हैं उनको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। जी आज़ाद नोहरियो, आपका बहुत शुक्रिया। FIA स्पेशल सेंट्रल कोर्ट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ शुगर मिल्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग केस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर के खिलाफ समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म के लिए तलब भी कर लिया गया है। अहम समाअत का अहवाल आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ शुगर मिल्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर के खिलाफ समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त भी मंजूर की है। फॉरेन फंडिंग केस में खामोशी क्यों इख्तियार की जा रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसराइल और भारत से पैसा लिया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं पाकिस्तान अवाम का है, किसी इदारे या लाडले के लिए नहीं। फुल कोर्ट नहीं बुलाया कि जज छुट्टी पर हैं, लेकिन जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लिया। सियासत करनी है तो इस्तीफा देकर मैदान में आओ। कमीशन अभी तक उसके बारे में कोई फैसला नहीं कर रही। क्यों खामोशी इख्तियार की जा रही? फॉरेन फंडिंग केस आया, इसराइल से और हिंदुस्तान से पैसे लिए, फुल कोर्ट नहीं बनाया कि जज छुट्टी पे है। जुडिशल कॉन्फ्रेंस इसीलिए बुलाई कि जज छुट्टी पे है। नवाज शरीफ के खिलाफ तो एक पानामा केस आता है और इकामा पे जाकर कोर्ट उनको नाअहल करार देती है। मैं तो ऐसे जजों को, ऐसे जर्नलों को, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं कि अगर आपने सियासत करनी है तो फिर इदारे को मत इस्तेमाल करो, इस्तीफा देकर मैदान में आओ, हम तुम्हारे औकात देखते हैं। ये पाकिस्तान अवाम का है, किसी एक इदारे के, किसी लाडले के लिए नहीं बना, इस मुल्क के अवाम के लिए बना है। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाया जाए। नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर का मुतालबा। कहते हैं इस मुल्क में 2 कानून हैं, एक कानून 22 करोड़ अवाम के लिए, दूसरा कानून लाडले के लिए है। इमरान खान अगर सादिक और अमीन है तो तलाशी दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हेले बहाने से ये फैसला रुकवाना चाहती है। नवाज शरीफ ने भी अपने असासों का पूरा हिसाब दिया। इमरान खान को क्या मसला है, वो क्यों नहीं हिसाब दे रहे? 2 कानून है पाकिस्तान में, एक है 22 करोड़ अवाम के लिए और एक है प्रिविलेज्ड इमरान खान के लिए, जिनको आम फहम जुबान में लाडला भी कहा जाता है। 8 साल हो चुके हैं, 8 साल फॉरेन फंडिंग केस इलेक्शन कमीशन में पड़ा है और सिर्फ इस चीज के लिए कि इमरान खान या पीटीआई की लीडरशिप उसका जवाब दे। कभी हाई कोर्ट भागते हैं, कभी कार्रवाई रुकवा देते हैं इलेक्शन कमीशन में, कभी सुप्रीम कोर्ट भागते हैं और वहां से फैसला लेके आते हैं कि इसकी कार्रवाई रोक दी जाए। मियां नवाज शरीफ ने तो तमाम हिसाब किताब दिए, उनको तो डिस्क्वालीफाई भी किया गया, वो हर कोर्ट के पास गए हैं, कन्विक्शन भी हुई है, गलत हुई है, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं हिसाब किताब नहीं दूंगा। तो ये एक दफा फिर हम इलेक्शन कमीशन से भी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सू मोतले क्यों नहीं बुलाते इमरान खान को? वो कौन है भाई? सारे पाकिस्तानी हिसाब किताब देते हैं तो वो इमरान खान क्यों नहीं हिसाब किताब दे सकता? अब आपको खबर देते हैं कि डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी आज शाम 5 बजे तक जमा होंगे। डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए असम्बली का इजलास कल दोपहर 1 बजे होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वासिफ क़य्यूम डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार नामजद, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार का नाम सामने नहीं आया है। डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी आज शाम 5 बजे तक जमा होंगे।
कि अवाम पर एक और बिजली बॉम्ब गिरा दिया गया। नेपरा ने बिजली की कीमतों में 50 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया है। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला जारी कर दिया। बिजली की कीमतों में इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। लाइफलाइन सार्फिन पर भी इजाफे का इतलाक नहीं होगा। अवाम पर एक और बिजली बम गिरा दिया गया। नेपरा ने बिजली की कीमत में 50 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया है। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला जारी कर दिया। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 4,979 मेगावाट है। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 19,021 मेगावाट जबकि तलब 24,000 मेगावाट है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 4 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी परेशान है क्योंकि मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 4,979 मेगावाट है। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 19,021 मेगावाट जबकि तलब 24,000 मेगावाट है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 10 घंटे बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, जबकि के इलेक्ट्रिक का दावा है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग कहीं नहीं हो रही है। मज़ीद बात करते हैं वसीम इफ्तिखार से। वसीम, अपडेट कीजिएगा। शहर में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाइन्स एरिया के इलाके में। लाइन्स एरिया में जो इलाका मकीनों से हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि यहाँ पर तकरीबन 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है और रात के औकात में जब बिजली चली जाती है तो रात जो है वो जाग कर गुजारना पड़ती है। चूँकि बारिश का सीज़न भी है तो बारिश के बाद जो है वो जब लाइट चली जाती है तो सूरत हाल और भी अबतर हो जाती है। बच्चे जो है वो गर्मी से बेहाल हो जाते हैं, जो ज़ईफ़ुल उम्र अफराद हैं वो भी परेशान होते हैं, जबकि बिजली की आँख मचोली से जो है वो ख़वातीन के जो घरेलू उमूर हैं वो भी शदीद मुतासिर होते हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल ये है लाइन्स एरिया की तो इलाका मकीन परेशान है। अगर हम बात करें शहर के मुख्तलिफ इलाकों की जिसमें मज़ाफ़ाती इलाके हैं या फिर पोश इलाके हैं, वहाँ पर भी जो है वो बिजली की आँख मचोली का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से जो शहरियों के मामूलात ज़िंदगी हैं वो शदीद मुतासिर हो रहे हैं। दूसरी जानब अगर हम के इलेक्ट्रिक के मौक़िफ़ की बात करें तो के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ यह है कि कहीं पर भी जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। तमाम तर इलाकों में जो है वो शेड्यूल के मुताबिक, मामूल के मुताबिक बिजली फराहम की जा रही है। और के इलेक्ट्रिक के मौक़िफ़ आपका बहुत शुक्रिया। कराची वालों के लिए खुशखबरी है। सूबाई वजीर बराए ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने ईदी ऑरेंज लाइन बस मंसूबा अगस्त में शुरू करने का ऐलान कर दिया है। सिंध असम्बली में सवाल जवाब के दौरान शर्जील मेमन का कहना था कि ऑरेंज लाइन मंसूबे पर 99% काम मुकम्मल हो चुका है। इनके अलावा अगस्त में एक और सरप्राइज देंगे। रेड लाइन वाहिद बस सर्विस होगी जो बायोगैस पर चलेगी। मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। कहा कि कराची में बसेस जो आई हैं, बिल्कुल कराची में जो बसेस आई हैं वो रूट बाय रूट हम इसको शुरू कर रहे हैं। एक दिन सारी शुरू करनी नहीं थी और हम अनाउंस करते थे आज हम रूट नंबर 1 शुरू कर रहे हैं, आज रूट नंबर 2 कर रहे हैं, आज रूट नंबर 3 कर रहे हैं। लाड़काना की बसेस की बात की, लाड़काना की आधी बसेस पहुंच गई हैं, आधी बसेस जो है वो 1 या 2 दिन में वो भी वहां पहुंच जाएंगी लाड़काना डेपो पे, फिर उसके बाद सर्विस प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे वो चक्कर नहीं है जो केपीके में। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि बसें पहुंच गई थी और बीआरटी स्टेशन वहां टपक रहे थे। बसें पहुंच गई थी और जो बसें चल नहीं सकी, बसें पहुंच गई थी और केपीके की खुद इंस्पेक्शन टीम कह रही है कि 7 अरब रुपए के सिर्फ किकबैक्स चले और बसें पहुंच गई। अब पता यह भी चल गया है कि उन बसों का कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा होने वाला है और औने पौने भाव जो है वो किसी और को बिकने जा रही है, वो भी जियो टीवी पे रिपोर्टिंग में है। हम आपकी तरह नहीं जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में कि जज साहब स्टे ऑर्डर दे दो, हमारे खिलाफ नैब और एफआई इंक्वायरी ना करे। स्टे ऑर्डर्स के पीछे छुपते फिर रहे हो, हम नहीं छुपते फिर रहे। हम सब चीज को इन्वेस्टिगेशन को और इंक्वायरीज को फेस करें, आप लोग छुपते फिर रहे हो। हमारी बसेस सर्विस को जिस इदारे से ऑडिट करवाना करवा लो और आप अपनी भी बसों को ऑडिट करवाओ। मौसम गर्मा की तातीलात खत्म। इस्लामाबाद के प्राइवेट स्कूल्स पीर को खुलेंगे। सेक्रेटरी प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का कहना है कि प्राइवेट स्कूल्स में मजीद छुट्टियों की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। कैम्ब्रिज सिस्टम के साथ मुंसलिक इदारे जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक खुलेंगे। मौसम गर्मा की तातीलात खत्म हो चुकी हैं। इस्लामाबाद के प्राइवेट स्कूल्स पीर को खुलेंगे।